Hello students. So today I am going to start the chapter, actually the topic perfect tense. Okay, in tense we already have studied um, simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, and future continuous. So I think present perfect, past perfect, and future perfect, and then continuous, perfect continuous, like present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous was remained. So we will complete this today. Okay, so let's start the topic. So what is the topic? Present perfect tense. Okay, so this is present perfect tense. So what we were doing, that first we write the definition, okay, and we again we write identification in our language. Our language means the easiest language, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और ट्रांसलेशन आप बेहतर तरीके से कर सको. So definition क्या है? Present perfect tense refers to an action or event that started at some time in the past, that started at some time in the past was completed not much before, was completed not much before the time of speaking, time of speaking, and the impact of which is retained and the time of speaking, and the impact is remained at the time of speaking. कह रहा है कि कोई ऐसा एक्शन या फिर इवेंट, ठीक है, जो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और पास्ट में ही आई मीन स्पीक करने से, स्पीकिंग के टाइम से कुछ टाइम पहले वो क्या है, फिनिश हो चुका है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, चलो इजीएस्ट लैंग्वेज में हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका. अगर कोई वो सेंटेंस दिया है हिंदी में, मान लो दिया है, सो हाउ विल वी recognize the, how will we identify the sentence? Sorry. Identification.
any Hindi sentence ends with चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, etc. What etc. is what? Present perfect tense. Okay, present perfect tense. चलो, let us translate into English. Let us do the translation. Okay, first we will write the rule and regulation. So if the sentence is affirmative, then what? The sentence is what? Affirmative sentence. Okay, rule. Subject plus subject has, have plus verb third form plus object. For example, this is your holy gift. Okay, so now example, like Nisha स्कूल जा चुकी है. Okay, so if you want to say this sentence कि निशा स्कूल जा चुकी है, so what will you write? निशा has gone to the school. Okay, so you will write like this. If it is plural subject, then वे बनारस गए हैं. Okay, so they have gone, they have gone to बनारस. So I think it's much understood to you. ठीक है, कैसे बनाते हैं? क्या किया हमने? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइक दैट. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. गो का थर्ड फॉर्म बेटा गॉन होता है. देन ऑब्जेक्ट. समझ में आया? वेरी गुड. सो दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ नेगेटिव.
what happen if it will be negative? Subject plus has have plus not plus verb third form, okay, plus object. What was the first example? Nisha स्कूल नहीं गई है. निशा has not gone to the school. वे बनारस वे बनारस नहीं गए हैं. They have not gone to बनारस. ओके, नेक्स्ट. ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. ओके, कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव? थिंक वी हैड interrogative. What was the first sentence? क्या निशा स्कूल जा चुकी है? Has निशा gone to school? एक इसको चेंज कर देते हैं. क्या आप इस जगह
इस जगह क्या आप इस जगह पहले कभी आए हो, कभी आए हैं? हेलो, क्या आप इस जगह पहले कभी आए हैं? हैव यू हैव यू एवर हैव यू एवर बीन टू दिस प्लेस बिफोर? Okay, so next, interrogative. नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेंटेंस. ओके, तो रूल हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, क्या था एग्जाम्पल? क्या निशा स्कूल नहीं गई है? कर लेते हैं इसी को. क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया? ये कर लेते हैं. क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया? हैव यू नॉट completed have you not completed have you not completed your work?
have you not completed your work? Okay, so क्या निशा वही लिख देते हैं. Has Nisha not gone to school? Okay, so this is what? Present perfect tense. Okay, so this is your present perfect tense. Okay, सॉरी. ये हो गया उसका डेफिनेशन. ठीक है, देन ये हो गया डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन. ओके, देन ये रूल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल एंड एग्जाम्पल. देन इट्स नेगेटिव सेंटेंस एंड इट्स रूल एंड एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव and its rule and examples. Okay, and then interrogative negative and its rule and examples. ठीक है, so I don't think कि you have any problem and all. ठीक है, आप समझ ही रहे होगे because already you have read some part of the tenses. Okay, so now we will do what? Past perfect and future perfect tense. ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को. In past I think this is not important, so
नाउ सी, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ओके, आइडेंटिफिकेशन, एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी, एटसेट्रा इज व्हाट? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ सी, इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस क्या है आपका? अफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कर देंगे. बस डिफरेंस क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चेंजिंग क्या होती है? बस हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव का कमाल है. बाकी सारी चीजें जो है एज इट इज सिमिलर रहती हैं. तो आप लोग नए सिरे से बनाना. मैंने क्या किया है कि बस उसी को कट किया है और उसको एडिट किया है, ठीक है, उसको हटा करके इरेज करके और नई चीजें जोड़ दी हैं. ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, बट यू विल हैव टू मेक योर प्रॉपर नोट, ठीक है. तो आप इसको ऐसे देख करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. अगर अफर्मेटिव रहेगा देन इन द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. निशा स्कूल जा चुकी थी. निशा हैड गॉन टू द स्कूल, गॉन टू स्कूल. ओके, सो वे बनारस गए थे. दे हैड गॉन टू बनारस. ओके, नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, निशा स्कूल नहीं गई थी. निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल. ओके, निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल. ओके, वे बनारस नहीं गए थे. दे हैड नॉट गॉन टू बनारस. ओके, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. ओके, कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या निशा स्कूल जा चुकी थी? मीन्स हैड निशा गॉन टू स्कूल. ओके, क्या आप इस जगह पहले कभी आए थे? हैड यू एवर बीन टू दिस प्लेस बिफोर. देन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया था? हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क. क्या निशा स्कूल नहीं गई थी? हैड निशा नॉट गॉन टू स्कूल. ओके, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द टेंस विच पास्ट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. नाउ ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है. अब क्या रह गया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है. तो फ्यूचर में भी हम ऐसे ही कर देंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस refer to the completion of
फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. See, when we do the future perfect tense, then what happened ki the future perfect tense refers to the completion of the action before another action in the फ्यूचर. तो फ्यूचर में कोई और एक्शन स्टार्ट होने से पहले जो है कोई अगर एक्शन खत्म हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है, दैट विल बी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन क्या? एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इट्स कॉल्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट future perfect tense. What happen if the sentence is affirmative? अगर sentence affirmative है तो क्या करते हैं? subject plus will shall plus have plus verb third form plus object. तो क्या लिखेंगे? निशा स्कूल जा चुकी होगी. निशा will have gone to school. वे बनारस जा चुके होंगे, मीन्स दे विल हैव गॉन टू बनारस. ठीक है. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो निशा स्कूल नहीं गई, इसको हम क्या करते हैं? चेंज. ठीक है. क्या करेंगे? निशा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, क्या कर देंगे? नहीं, निशा स्कूल नहीं जा चुकी होगी. नहीं जा चुकी
होगी। सो निशा विल नॉट हैव गॉन, क्या करेंगे? निशा विल नॉट, विल हैव नॉट, सॉरी क्या था इसमें? सीता विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, देन वे बनारस नहीं गए, वे बनारस नहीं जा चुके होंगे। क्या होगा? वे बनारस नहीं जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। क्या कर देंगे इसका? दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट they will have not gone to Banaras. Okay, had subject plus verb third form, sorry, will shall plus have plus subject plus verb थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट, will shall have plus subject plus verb third form plus object. Okay, so it will be different actually. Will or shall
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल विल निशा विल निशा हैव गॉन टू स्कूल। ओके, एंड देन क्या आप इस जगह पहले कभी क्या वे क्या वे देहरादून, नहीं दिल्ली कर लो, विल दे हैव गॉन टू दिल्ली। देन आ जाओ इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, ठीक है। रूल विल shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राघव अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा।
पूरा नहीं कर चुका होगा। ओके, विल राघव हैव नॉट completed his homework, his homework. So now see, हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने डेफिनेशन देखा। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन, देन अफर्मेटिव अगर सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीता स्कूल जा चुकी होगी, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। वे बनारस जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू बनारस। ठीक है, देन कम टू नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो निशा स्कूल नहीं जा चुकी होगी मीन्स निशा विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल। देन वे बनारस नहीं जा चुके होंगे, दे विल हैव नॉट गॉन टू here I think some changes will be there. Wait, they will not have, it was just some mistakes was there, like पहले now not होगा then have होगा। ओके, ठीक है, they will not have gone to बनारस। then यहाँ पे भी यही थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। हाँ वो ठीक है, विल निशा हैव गॉन टू स्कूल, यस इट्स करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होएगा, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो निशा स्कूल नहीं जा चुकी होगी मीन्स निशा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वे बनारस नहीं जा चुके होंगे मीन्स दे विल नॉट हैव गॉन टू बनारस। ठीक है, इंट्रोगेटिव पे आते हैं, विल प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या निशा स्कूल जा चुकी होगी, विल निशा हैव गॉन टू स्कूल। क्या वे दिल्ली जा चुके होंगे मीन्स विल दे हैव गॉन टू दिल्ली। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर है तो
विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्या राघव अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, मीन्स विल राघव हैव नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। सो आप लोग इसको थोरोली यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस देन कंसल्ट विद मी, ओके। ओके, थैंक यू।